हरे कृष्णा। चैप्टर 2 वर्स नंबर 62। तो श्रृंखला है श्लोकों की। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधभिजायते। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। ट्रांसलेशन: when contemplating the object of the senses, a person develops attachment for them, and from such attachment lust develops, and from lust anger arises. तो पहले लिखा है ध्याय, तो हिंदी में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, ध्यान करना। ध्यायतः किस पर? विषयान, विषय वस्तु पर, सेंस ऑब्जेक्ट्स। जैसे आंखों के लिए सेंस ऑब्जेक्ट क्या है? फॉर्म, रूप। जिह्वा के लिए क्या है? रस। नाक के क्या है? गंध। त्वचा के लिए क्या है? स्पर्श है। कानों के लिए क्या है? ध्वनि है। इसे कहते हैं विषय वस्तु। विषय और विषय वस्तु, विषयान, सेंस ऑब्जेक्ट। सो सेंसेस, अर्थ, इंद्रियार्थेषु, इंद्रिय, सेंसेस। उसके लिए विषय क्या है? इंद्रिय के लिए विषय वस्तु क्या है? ये सब मैंने बोला। तो वाइल कंटेम्पलेटिंग, जब आप विषय वस्तु पर ध्यान देते हैं, मनन करना, ओके, देखना अलग बात होती है, मनन करना अलग होता है। स्वाभाविक है संगस्तेषुपजायते, संग करने की, संग प्राप्त करने की इच्छा जागृत होगी, और ऐसे आसक्त से, ऐसे संग से कामनाओं की उत्पत्ति होगी। काम का उत्पन्न होगा, काम, लस्ट जिसे कहते हैं। बहुत तीव्रता से प्राप्त करने की लालसा जागृत होगी। एंड फ्रॉम लस्ट, क्योंकि लस्ट मनुस्मृति में भी दिया गया है कि काम को कभी तृप्ति नहीं कर सकते आप जितना अग्नि में घी डालेंगे अग्नि उतनी भड़कती है। उसी प्रकार लस्ट को जितना सेटिस्फाई करने का प्रयास करेंगे, लस्ट उतना ही तीव्रता से फिर से सेकंड टाइम आ जाता है। फिर सेकंड टाइम प्रयास करेंगे तो थर्ड टाइम फिर से और आएगा। जिस प्रकार इचिंग, पहली बार खुजाएंगे तो तीव्रता कम रहेगी, दूसरी बार खुजाएंगे तीव्रता ज्यादा हो जाएगी, और चौथी बार तो और ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान करने से आसक्ति, संग प्राप्त करने की इच्छा, फिर संग प्राप्त करने से कामना की इच्छा, काम की इच्छा, काम की उत्पन्न हो जाती है, और काम उत्पन्न होने की वजह से काम तृप्त नहीं होता, इसलिए क्रोध उत्पन्न होता है कि कामनाओं की पूर्ति मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूं। And you will find there are so many murder cases due to this lust. कभी देखता है कि वाइफ अपने लवर के लिए या बिलव्ड के लिए अपने पति का हत्या कर सकती है। कई बार बच्चों का भी हत्या की गई है। आप ऐसे अपने कई केसेस देखे हैं। तो ये चीज है। Purport by Srila Prabhupada. One who is not Krishna conscious is subjected to material desires while contemplating the object of the senses. The senses require real engagements, and if they are not engaged in the transcendental loving service of the Lord, they will certainly seek engagement in the service of materialism. In the material world, everyone, including Lord Shiva and Lord Brahma, to say nothing of other demigods in the heavenly planets, is subjected to the influence of the sense objects. And the only method to get out of this puzzle of material existence is to become Krishna conscious. Lord Shiva was deep in meditation, but when Parvati agitated him for sense pleasure, he agreed to the proposal, and as a result, Kartikeya was born. So this is a pastime where the demigods need Kartikeya, need a soldier who can defeat the asuras, and there was solution that Shivji's son can only defeat these asuras. So that time Shivji was meditating and were not possible to have son from Parvati Mata. So they tried their level best. Devatas had tried their level best and they took shelter for Parvati, and then due to Parvati Mata's beauty, it is stated here that she agitated Lord Shiva for sense pleasure. But we have to understand this is a pastime, and Lord Shiva is not like a last living entity, but just for the sake of giving example, Srila Prabhupada is quoting this. So when Haridas Thakur
Contradictory to this, when Haridas Thakur was a young devotee of the Lord, he was similarly allured by the incarnation of Maya Devi. But Haridas easily passed the test because of his unalloyed devotion to Lord Krishna. As a result, as illustrated in the above mentioned words of Sri Yamunacharya, a sincere devotee of Lord shuns all material sense enjoyments due to his higher taste for spiritual enjoyment in the association of the Lord. That is the secret of success. One who is not, therefore, in Krishna consciousness, however powerful he may be in controlling the senses, by artificial repression, is surely ultimate to fail, for the slightest thought of sense pleasure will agitate him to gratify his desires. कितना भी व्यक्ति बड़ा तपस्वी क्यों ना हो, तपस्विनी क्यों ना हो, ज्ञानी क्यों ना हो, विद्वान क्यों ना हो, पर अगर थोड़ा सा भी सेंसेस को चांस दे देगा, थोड़ा सा भी अगर माया को चांस दे देंगे, व्यक्ति का पतन हो सकता है. सौभरी ऋषि के उदाहरण में भी हम देखते हैं, जल में तपस्या करता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं उनको, एकमात्र सिर्फ मछलियों का संभोग देखते हुए ही मन विचलित हो जाता है और विवाह करने की इच्छा होती है, काम इच्छा उत्पन्न हो जाती है और वह जल से बाहर आके मानधत्त राजा के 50 पुत्रियों से विवाह कर लेते हैं. विश्वामित्र मुनि का भी उदाहरण देखे हैं कि मेनका के घुंघरू की या पायल की ध्वनि से ही विश्वामित्र मुनि भी विचलित हो जाते हैं. तो काम इतना दुरासदम है, इतने इट्स insurmountable. No one can cross lust. So until and unless one is not engaged in service of Lord Krishna. भगवान कृष्ण की सेवा में जिसकी इंद्रियां लगे नहीं हैं, तब तक वो सेफ नहीं है, चाहे वो गृहस्थ लाइफ हो या फिर ब्रह्मचारी लाइफ हो या फिर सन्यासी लाइफ हो. इफ इज नॉट एंगेज इन सर्विस ऑफ द लॉर्ड, वो पतन हो सकता है. तो इवन गृहस्थों को ये सुझाव है कि इंद्रिय तृप्ति ना करें. इट्स नॉट अ लाइसेंस टू हैव सेंशुअल रिलेशनशिप्स एंड जितना भी हो सके अटैचमेंट रखो, ये सब नहीं है, बल्कि हमको भगवान के प्रति अटैचमेंट दोनों को बढ़ानी चाहिए, जिससे भगवान के प्रति अटैचमेंट आने से अपने आप परस्पर अटैचमेंट कम हो जाती है, शारीरिक जो अटैचमेंट है. तो इसलिए फर्स्ट थिंग इज व्हाट, डोंट कंटेम्पलेट ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंसेस. आप विषय वस्तु पर मनन न करें. यानी अगर पुत्र बहुत ही व्यक्ति, माँ बहुत आसक्त होते, अगर भक्त है कोई और उसकी आसक्ति जो है अपने पुत्र के प्रति ज़्यादा है, तो उसके ऊपर मनन ज़्यादा ना करे, बल्कि भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप पर मनन कीजिए. कोई पति पर बहुत आसक्त है, पत्नी के ऊपर आसक्त है, तो उस पर मनन न करे, बल्कि भगवान कृष्ण को पति रूप में स्वीकार करने का स्वाभाविक तौर पे होना चाहिए, ऐसे फोर्स नहीं, बल्कि भगवान कृष्ण पर मनन करे, क्योंकि भगवान कृष्ण सबके पति हैं. तो ऐसे में हमको भगवान कृष्ण को सेंटर में रखते हुए अथवा भगवान कृष्ण को विषय वस्तु बनाते हुए क्योंकि आश्रय तत्व, आश्रय लेने योग्य सिर्फ कृष्ण है. इसलिए ये श्रृंखला में श्लोक में पहला श्लोक हुआ जिसमें ध्यान करने से संग प्राप्त करने की इच्छा, संग प्राप्त करने से कामनाओं की इच्छा, कामना बढ़ती है और काम होने से क्रोध आता है. नेक्स्ट वर्स. उसके पहले हम आचार्यों की कमेंट्री का भी देखेंगे. सो नेक्स्ट वर्स भी है. These Acharya commentaries of this verse number 62, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर is saying that the सीता प्रज्ञा, क्योंकि सीता प्रज्ञा की व्याख्या दे रहे हैं भगवान कृष्ण, तो सीता प्रज्ञा कौन है, तो he controls the mind first. और जो व्यक्ति कंट्रोल नहीं करता है मन को, उसका रिजल्ट क्या होगा, ये इन श्लोकों की श्रृंखलाओं में दिया गया है. जो सीता प्रज्ञा व्यक्ति नहीं बनेगा और उसको मन पर संयम नहीं रहेगा, कंट्रोल नहीं रहेगा, तो उसका क्या हालत होगी, ये इस श्लोकों की श्रृंखला में हमको पता चल रहा है. Shri Ramanujacharya is saying that whose attachment to sense objects is expelled, but whose mind is not focused on me. Okay, even though he controls the senses, contemplation or dreaming on sense objects is unavoidable on account of the impressions of sense from the immemorial, from the time immemorial. आप भले ही इंद्रियों पर संयम रखेंगे और कुछ देर तक रख भी सकते हैं,
पर अगर मन भगवान कृष्ण की सेवा में नहीं रहेगा, मन इधर उधर भागेगा, तो प्रॉब्लम क्या, आप कितना भी कंट्रोल करने के बावजूद भी आप फेल हो जाएंगे। क्योंकि पूर्व जन्म में जो मन पर जो इंप्रेशंस पड़े हैं पापों के, वो अभी भी हैं। इसके वजह से कुछ काल तक व्यक्ति को लग सकता है कि वो लस्ट ही नहीं है, उसका लस्ट निकल चुका है, पर वो लस्ट निकल नहीं चुका है, वो अभी छिप चुका है। इट इज जस्ट सबसाइडेड। ओके, सो जिस प्रकार शरद ऋतु में, जो वर्षा ऋतु में जब धूल है पानी में पूरी तरह जमी रहती है, पूरा पानी जो है वो मैला हुआ लगता है, और शरद ऋतु में जो है जो मिट्टी है वो नीचे चली जाती है। पर आप थोड़ा मंथन कर देंगे, थोड़ा हिला देंगे ना पानी को, तो वो फिर से मिट्टी आ जाएगी। उसी प्रकार आप एजिटेट हो जाएंगे। अगर इंद्रिय विषय वस्तु आपके सामने रहेंगे तो फिर से कामनाएं आ सकती हैं। ऐसे कई बार लग सकता है, कई पुरुष है किसको इसको लग सकता है मैं अभी बहुत साल ब्रह्मचार्य पालन किया हूँ, अभी मैं तो बहुत फ्री हो चुका हूँ, अभी तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। एंड देन ही विल स्टार्ट मिंगलिंग विथ वुमेन द वे ही वांट, तो उससे उसका पतन निश्चित है। दूसरा कोई माता अगर समझ लेंगे कि नहीं अभी मैं तो बहुत अभी पूरा कॉन्कर की उस सेंसेस के, अभी मुझे ज़रा भी शॉपिंग में इंटरेस्ट नहीं है, ना ज़रा भी मुझे ब्यूटी क्वीन नहीं बनना, ये नहीं वो नहीं, एंड देन जान पूछ कर वो जाएगी मॉल में प्रीचिंग करने के लिए, फिर मॉल में अभी जा सकती हूँ मैं, उधर उधर मूवीज़ के लिए जा सकती हूँ, पर मन भटक सकता है फिर से। ये तो हम ट्राई कर सकते हैं, वो उसने ट्राई किया तो मैं क्यों नहीं ट्राई कर सकते, तो ये विचार आ जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो समटाइम्स Keshav Kashmiri Singh, sometimes one is able to gratify one's senses by enjoying these sense objects. At that time, a particular state of mind arises where one becomes enslaved and controlled by the desire of the very same object one is seeking so desperate to exploit. Other times, one's desires are thwarted and obstructed, and unfulfilled in satisfying one's desire to experience sense objects leads to frustration, which is also a modification of the mind. At this time, anger is directed in fury towards whatever it was that became the obstacle that blocked one's gratification. तो कई बार ऐसे हो सकता है इंद्रिय विषय वस्तु को भोगने के लिए आपको सुविधा मिल सकती है। मुझे कुछ खाने की इच्छा हो, मैंने खा ली, मुझे कुछ भोग करने का इच्छा तो भोग कर लिया। पर कई बार ऐसे हो सकता है कि आपके पास सुविधाएं उपलब्ध ना हो, पर इंद्रियां की इच्छा बहुत तीव्र है, तभी आपको क्रोध आएगा फिर। तो ये मन का ही स्वभाव है। तो मन क्या करता है, जब सुविधा है तो एक्सप्लॉइट कर देता है सेंस ऑब्जेक्ट्स को, और जब सुविधा ही नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है उसका। तो ये मन का ही बिहेवियर है। तो दोनों से बचना चाहिए, सुविधा होने के बावजूद भी भोग नहीं करना है, और सुविधा नहीं है तो भी क्रोधित नहीं होना है इंद्रिय तृप्ति के लिए। वर्स नंबर 62, सेकेंड चैप्टर, वर्स नंबर 62। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात्, ओके, अभी तक हमने क्या सुना, ध्यान करने से विषय वस्तु पर मनन करने से आसक्ति बढ़ती है, संग प्राप्त करने की इच्छा लालसा जागृत होती है, काम, फिर उससे काम आता है, लस्ट आता है, लस्ट के बाद क्योंकि सेटिस्फाई नहीं होता है तो क्रोध आता है, फिर क्रोध से क्या होता है, सम्मोह, व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, कंप्लीट डिल्यूशन अराइजेस। और फिर सम्मोहित होने के बाद क्या होता है, स्मृति विभ्रमः, बिविल्डरमेंट ऑफ मेमोरी, हिज मेमोरी स्टार्ट बिविल्डरिंग, जो उसके हित के लिए वो समझ ही नहीं सकता, कंफ्यूज हो गया वो, किसके वजह से, क्रोध की वजह से। इसलिए क्रोध में निर्णय नहीं लिया जाता है, क्रोध में आप कोई बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए, क्रोध में संबंध नहीं बनाया जाता है, क्रोध में कोई धन का कोई डील नहीं करना चाहिए, फाइनेंस का कोई डील नहीं। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोध, क्योंकि आप डिसिसिव पावर आपके पास नहीं उस समय पे, क्योंकि मेमोरी बिविल्डर हो चुकी है। एंड व्हेन द मेमोरी इज बिविल्डर्ड, आपकी बुद्धि नाश हो जाएगी, इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश हो। अगर इंटेलिजेंस ही लॉस्ट हो गई, क्या मेरे हित के लिए, क्या मेरे हित के समझ, हित के लिए वो अहित लगने लगता है, और अहित के लिए जो हित लगने लगेगा, तो व्हाट हैपन, व्हेन इंटेलिजेंस इज लॉस्ट, वन फॉल्स डाउन अगेन इनटू द मटेरियल पूल, प्रणश्यति, बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। व्यक्ति का इतना बुरा पतन हो जाता है, जैसे अजामिल का, ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बावजूद भी वो चांडाल के भांति जीवन जीने लग गए, इतना पतन हो जाता है व्यक्ति का, सिर्फ भोग करने से, ये ध्यान करने से विषय वस्तु पर। प्रोस्टिट्यूट पे ध्यान क्या किया, अपने
सती पति पत्नी को छोड़ दिया, संस्कारी जो परिवार था उसको छोड़ दिया, घर को त्याग कर दिया, ब्राह्मण धर्म को त्याग करने के बाद वैश्या के साथ विवाह कर लिया और इस वैश्या को प्रसन्न करने के लिए चोरी, डकैती, किसी को मारना, ये सब करने लगा। ओके, सो हियर इट इज, व्यक्ति का विनाश कैसे होता है। पूरी तरह विनाश बुद्धिनाश होने से, बुद्धिनाश हो रही है स्मृति भ्रमित होने से, और स्मृति भ्रमित हो रही है सम्मोहित होने से। तो ये सब पूरा क्रोनोलॉजी है। पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद, श्री रूप गोस्वामी स्टेटिंग दैट प्रपंचिकतया बुद्ध्या हरि संबंधी वस्तुनः मुमुक्षुभिः परित्यागो वैराग्यम फल्गु कथ्यते। फल्गु वैराग्य का डेफिनेशन दिया। वैराग्य भी अलग अलग प्रकार का है। मरकट वैराग्य होता है, फल्गु वैराग्य होता है, शुष्क वैराग्य होता है, युक्त वैराग्य होता है। तो अलग अलग प्रकार का वैराग्य है। जैसे फल्गु वैराग्य क्या है? बाय डेवलपमेंट ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस वन कैन नो दैट एवरीथिंग हैज इट्स यूज इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। Those who are without knowledge of Krishna consciousness artificially try to avoid material objects. And as a result, although they desire liberation from material bondage, they do not attain to the perfect stage of renunciation. Their so-called renunciation is called Phalgu or less important. यानी दिखावा करना कि मैं बहुत विरक्त हूँ। प्रभुपाद जी एक बार उदाहरण, प्रभुपाद की लीला में एक उदाहरण आता है जिसमें एक स्वामी जी का फोटो रहता है, इसका ब्रोशर, इसका पैम्फलेट छपा रहता है। उसमें स्वामी जी के साइड में पैसे दिखा रहे और स्वामी जी दिखा रहे कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, ऐसे उसने एक्सप्रेशंस दिए हैं। प्रभुपाद कहते हैं मेरा भी पैम्फलेट बना दो, मेरा भी फोटो निकाल दो कि मेरे हाथ में भी पैसा हो, मेरे आजू बाजू भी पैसा हो, सब जगह पैसा हो। तो शिष्य हंसने लग गए, बोले ये क्या? तो प्रभुपाद बोले यस, मैं सभी पैसों को भगवान की सेवा में लगा सकता हूँ। ये युक्त वैराग्य, दिस इज द टॉप मोस्ट डिटैचमेंट। और बराबर वही है कि संसार में कोई चीज़ खराब कैसे हो सकती है? भगवान के ही से ही सब कुछ आया हुआ है, तो कुछ खराब कैसे हो सकती है? जब हम अपने तृप्ति के लिए लगा देते हैं, अपने स्वार्थ के लिए लगाना खराब है। सो वुमन इज नॉट बैड, द टेंडेंसी टू एंजॉय वुमन इज बैड। मैन इज नॉट बैड, द टेंडेंसी टू एंजॉय मैन और कंसिडरिंग मैन एज मास्टर इज बैड। सो the money is not bad, considering money as source of all enjoyment for my body and my family, that is bad. So कोई भी वस्तु इस संसार में खराब नहीं है, क्योंकि सब कुछ कृष्ण से आता है। एवरीथिंग इज ऑस्पिशियस, सिवाय हम भगवान की सेवा में हर चीज को लगाते हैं। इसे ही वैराग्य कहते हैं, युक्त वैराग्य। अगर ऐसा नहीं करना, कोई भी वस्तु को त्याग देना संसारी कहकर कि ये संसारी चीज है, ये माया है, स्त्री माया है, पुरुष माया है, और ये भी माया है, ये वस्तु भी माया है, माइक भी माया है, लैपटॉप भी माया है, मोबाइल भी माया है, सब कुछ माया, ऐसे करेंगे और भगवान की सेवा में नहीं, तो ये परिपूर्णता नहीं मिलेगी आपको वैराग्य में। होल लाइफ विल बिकम टेस्टलेस। सो ऑन द अदर हैंड, अ पर्सन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस नोज हाउ टू यूज एवरीथिंग इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। पर कभी कभी होता है कि हम भगवान की सेवा में लगाते लगाते अपने सेवा में लगाना ये ठीक नहीं है, इंद्र तृप्ति हो जाएगी, ये ठग हो जाएंगे फिर हम। तो इसमें भी बहुत डेंजरस है। अगर मोबाइल सोचेंगे भगवान की सेवा में यूज़ करें, करते करते हम अपने ही कुछ भी देखेंगे, तो ये तो इंद्र तृप्ति होगा, ये माया बन सकता है हमारे लिए। इसलिए हमको हमारी लिमिटेशंस को जान के ये चीज़ करना है। देयरफॉर इट डज नॉट बिकम अ विक्टिम ऑफ मटेरियल कॉन्शियसनेस। ऐसा व्यक्ति जो है भौतिक चेतना में नहीं आता है, क्योंकि वो सभी चीज़ भगवान की सेवा में लगाता है। और फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन इम्पर्सनलिस्ट, एक मायावादी के लिए द लॉर्ड और द एब्सोल्यूट बीइंग इम्पर्सनल कैन नॉट ईट, वो खा नहीं सकता अच्छे व्यंजन। Whereas an impersonalist tries to avoid good eatables. A devotee knows that Krishna is the supreme enjoyer and that he eats all that is offered to him in devotion. हम भगवान का प्रसाद खाते हैं, भले ही अच्छे व्यंजन बना, भगवान को तो अच्छा ही बनाएंगे ना, तो प्रसाद के रूप में स्वीकारते हैं, पर वही व्यंजन जब बाहर मिलेंगे तो नहीं स्वीकारेंगे। इसे कहते हैं विरक्ति। अब मायावादी क्या करते हैं? अच्छे व्यंजन नहीं बनाना है, ये माया है, ये बहुत नुकसान करता है, इससे में वो जीवा पर कंट्रोल नहीं ला सकते। सो आफ्टर ऑफरिंग गुड ईटेबल्स टू द लॉर्ड, द डिवोटी टेक्स द रेमिनेंट कॉल्ड प्रसादम, thus everything becomes spiritualized and there is no danger of a downfall. The devotee takes prasadam in Krishna consciousness, whereas the non-devotees reject it as material.
द impersonalist therefore cannot enjoy life due to his artificial renunciation. इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं क्लेश अधिक तरस्तेषाम, मायावाद के पथ में व्यक्ति को क्लेश बहुत, दुख बहुत मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो मायावाद सिद्धांत को पालन करते करते जीवन जो हो जाएगा उनका बहुत ही सूखा लगने लगेगा, उनको ड्राई लगने लगेगा। देयर इज नथिंग टू एंजॉय इन देयर लाइफ। इसलिए वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल सर्विस में आपको मिलेंगे, ऐसे मायावादी लोग, या पॉलिटिक्स में घुस जाएंगे, क्योंकि उनको आनंद चाहिए। The impersonalist therefore cannot enjoy due to his artificial renunciation, and for this reason a slight agitation of the mind pulls him down again into the pool of material existence. It is said that such a soul, even though rising up to the point of liberation, falls down again due to his not having support in devotional service. ये अन्य च रविंदाक्ष विमुक्तमानिनस त्वयि सद्भाव अविशुद्ध बुद्धैः आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतंति अधः युष्माद अंग्रयः। भागवत का ये श्लोक है। कई बार इसका उच्चारण प्रभुपाद जी कहते हैं, मुक्त अवस्था को प्राप्त करने के बावजूद जीव को फिर से इस संसार में आना पड़ सकता है अगर वो मायावाद सिद्धांत को पालन करता है तो, क्योंकि उसको भगवान के प्रति भक्ति भाव नहीं है, भगवान की सेवा करने का, या उसका अस्तित्व वो नहीं जान सकता कि वो भगवान का सेवक है। इसके वजह से फिर से इसको ब्रह्मांड में आना पड़ सकता है। यानी मायावाद की मुक्ति, ब्रह्मवाद, ब्रह्म ज्योति में लीन होने के बावजूद भी व्यक्ति का पतन हो सकता है फिर से। आजकल तो बहुत ही दूर की बात है ब्रह्म ज्योति में लीन होना, पर ब्रह्म ज्योति क्या, वो सन्यासी होने के बावजूद भी फंस सकता है। तो दैट्स व्हाट वेरी डेंजरस। इसलिए सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना। तो जब तक आप कृष्ण भावना में जुड़े नहीं हैं, जब तक आप हर वस्तु भगवान की सेवा में लगेंगे, तब तक देयर विल बी डेंजरस सिचुएशन फॉर यू। विषय वस्तु पे ध्यान करेंगे तो मान लीजिए कोई व्यक्ति सुंदर स्त्री को देखता है तो उसको लस्ट जागृत होता है, ना ऐसे सोच कर कि वो मेरे भोग की वस्तु है, ऐसा ना सोचना। उसको क्या सोचना चाहिए कि ये भगवान कृष्ण की भोग्य वस्तु है। संसार के सभी स्त्रियां जो हैं वो भगवान कृष्ण के हैं। या कभी धन को देखकर लालसा जागृत होती नहीं, ये कृष्ण का धन है। या कोई प्रॉपर्टी को देख के लालसा होती नहीं, ये भगवान कृष्ण का है। नीति में तो कहते हैं कि कूड़ा कचरा समझना है, लोष्टवत पर द्रव्येषु, दूसरों की प्रॉपर्टी को कचरा समझना है। पर भागवत सिद्धांत ये कहता है दूसरों की प्रॉपर्टी को भी भगवान की प्रॉपर्टी समझना है। अपनी प्रॉपर्टी को तो भगवान की प्रॉपर्टी समझना है फिर। तो ये लक्षण है युक्त वैराग्य, और यही हमको बचा सकता है ध्यान करने। ध्यान कोई वस्तु का हो रहा है तो इस प्रकार ध्यान करना है कि ये भगवान कृष्ण का है, नहीं तो फिर क्रोध आने से भ्रमित होना, भ्रमित होने से स्मृति नाश हो जाएगी, स्मृति विभ्रमित होना और स्मृति नाश होना, फिर उसके बाद बुद्धि नाश होने से प्रणश्यति, व्यक्ति का पतन हो सकता है। तो ये श्रृंखला हमने सुनी। ध्यान करने से ध्यायतो विषयन पुंसा, ध्यान करने से विषय वस्तु पर व्यक्ति को संग करने की इच्छा हो जाती है, संगास्तेषु उपजायते, और संग करने से कामनाओं की वृद्धि होती है, काम जागृत होता है। संगस्तेषु उपजायते, संगा संजायते कामः, इसलिए अच्छे संग करने से अच्छी कामनाएं बढ़ जाएगी। अगर लस्टी लोगों का संग करेंगे तो लस्टी बढ़ेगा। कामात् संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोध भी जायते, क्रोधात् भवति समः। फिर काम से क्रोध, काम सेटिस्फाई नहीं होने से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध होने से व्यक्ति भ्रमित हो सकता है। फिर बुद्धि उसका विचार करने की क्षमता उसमें नहीं होगी, बुद्धि का नाश हो सकता है। उसके पहले स्मृति भ्रमित हो जाएगी। ओके, विमोहित होने के बाद, क्रोध आने के बाद व्यक्ति विमोहित होता है, विमोहित होने के बाद स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रमित होने के बाद बुद्धि नाश होती है, और बुद्धि नाश से प्रणश्यति, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, व्यक्ति का पतन होता है। तो ये श्रृंखला श्लोकों की। तो आचार्य ऑल्सो कंटिन्यू, आचार्य कमेंट्रीज में इसका वर्णन है कि विदाउट, रामानुज आचार्य सेइंग दैट विदाउट द सुप्रीम लॉर्ड्स ग्रेस, who is the shelter of past, without the supreme lord's grace, the residue of past sensual activities and the pleasure or frustration derived therefrom will delude the mind to pursue sense objects. This debilitating effect creates a magnetic attraction where the desire for sense objects becomes more and more extreme. पूर्ववर्ती कर्मों की वजह से, पूर्ववर्ती इच्छाओं की वजह से
व्यक्ति का मन जो है इंद्रिय विषय वस्तु पर भागेगा। बहुत बड़ा आकर्षण होगा, ये मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा इसमें, मतलब खींचा चला, आपकी इंद्रियां जो हैं वो खींची चली जाएंगी। आपको प्रयास करने की कुछ आवश्यकता नहीं है। आप टीवी ऑन कर देंगे, आपको एडवर्टाइज लगा देंगे, वो एडवर्टाइज में ध्यान जाएगा। कोई गाना लगाएंगे, ध्यान तुरंत चला जाएगा। उसमें आपको प्रयास करना पड़ता है कि मेरा ध्यान न लगे उस पर, कृष्ण पर ध्यान लगे। आप मंत्र जप करिए, आपका मन भागेगा। तो क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार की वजह से आपका मन जो है वो इंद्रियों की तृप्ति के प्रति, विषयों के प्रति स्वाभाविक से आकर्षित हो जाता है, इसलिए बहुत कठिन हो जाता है। इसलिए व्यक्ति को इंद्रियों को क्या करना है, एंगेज करना है भगवान की सेवा में। यही उत्तर है इसका। So for the extreme desire springs काम लस्ट। सो लस्ट इज वेरी तीव्र फॉर्म है वो इच्छा का। So Sridhar Swami also states here that from delusion results confusion and lapse of memory. From loss of discrimination results bewilderment regarding the injunctions of the scriptures and instructions of the spiritual master. So loss of discrimination, बुद्धि नाशात, एक तो स्मृति भ्रंशात और फिर बुद्धि नाशात। तो आपके पास जितने भी शास्त्र के सिद्धांत आपके मन में है या स्मरण थे, या फिर जितने भी सुझाव निर्देश गुरु ने दिए हुए हैं, भगवद गीता में कृष्ण दिए गए हैं, वो कुछ भी काम नहीं आएंगे जब आपकी बुद्धि नाश हो जाएगी। आपके शास्त्र आपको काम नहीं आएंगे उस समय। भागवत पता है पर वो आपको उपयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपकी बुद्धि नाश हो चुकी है अभी। सो द एंड रिजल्ट ऑफ दिस इज द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ वंस इंटेलिजेंस लाइक अनटू अ ट्री। इसे स्मृति को खोना नहीं चाहिए व्यक्ति को। स्मृति खो गई तो हम शास्त्र को समझ नहीं पाएंगे, शास्त्र को नहीं समझ तो बुद्धि नहीं आएगी, क्योंकि शास्त्र से तो बुद्धि आती है। नहीं तो फिर हम कर्मी लोगों की बुद्धि अपना लेंगे। हमको आइडियल अगर इंटेलिजेंस चाहिए, हम शास्त्र पढ़ के लाना चाहिए उसको। शास्त्र में क्या लिखा है, आचार्य क्या कहते हैं, इसके आधार पर हम सोचते हैं कि करना क्या है क्या नहीं करना है। So then व्यक्ति का पूरा प्रणश्चित होना यानी पूरा फॉल डाउन होना यानी पूरा स्पिरिचुअल लाइफ इज पेरिशेस एंड इज बिकम्स डेड वाइल अलाइव। वो जीते हुए मरा जैसा व्यक्ति है। फिर माधवाचार्य सेइंग दैट फ्रॉम डिल्यूशन रिजल्ट्स Keshav Kashmiri is saying that from confusion once comes illusion, the misinterpretation of intellect in determining the true nature of reality. इतना पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, पर ये काम नहीं आएगा आपका उस समय पे। ये सिद्धांत इतना आकर्षण रहेगा शरीर के प्रति, व्यक्ति भूल जाएगा। सो फ्रॉम इल्यूशन स्पेशली द सेक्सुअल लाइफ इज सो इंटेंस इन क्रिएटिंग योर मेमोरी ऑफ बॉडीली कंसेप्शन। बॉडीली कंसेप्शन इतना तीव्र हो जाता है, दैट्स वाई ब्रह्मचर्य इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट ऑन ग्रॉस लेवल वन शुड नॉट हैव अ बॉडीली कंसेप्शन। तो इसलिए बचने के लिए ब्रह्मचर्य बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड देन लेटर थिंग्स ऑल्सो आफ्टर कम। सो वंस बॉडीली कंसेप्शन इज हाईली ट्रिगर्ड इन सेक्सुअल लाइफ, दैट्स वाई भोग करने की जो इच्छा है बहुत तीव्रता से पुरुषत्व की भावना आती है व्यक्ति में। तो इसलिए व्यक्ति को ब्रह्मचर्य पालन करें। फ्रॉम इल्यूजन वन बिकम्स कंप्लीटली रूइंड, वन लूजेस फोकस ऑन द गोल ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो जीवन का जो लक्ष्य है, विमोहित होना मतलब वो अपने लक्ष्य को भूलना। यहाँ पे केशव कश्मीर जी मीनिंग दे रहे हैं, जो जीवन का लक्ष्य है वो भूल जाना और अंधकार में जीना। Thus it must be understood that controlling one's mind is essential. इसलिए मन को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना पड़ेगा। मन भले ही विचलित हो, वो प्रतिकार कर रहा है, पर फिर भी भगवान की सेवा में इंद्रियों को लगाइए। ग्रेजुअली माइंड विल बिकम प्यूरिफाइड। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस 62-63 वर्स। ये कॉन्सिक्वेंसेस बता रहे हैं, इफेक्ट्स बता रहे हैं कि आप मन को अगर संयम नहीं रखेंगे, अगर ध्यान विषय वस्तु पर कर देंगे तो कितना बड़ा नुकसान व्यक्ति का हो सकता है। टिल नाउ एनी क्वेश्चंस? Not literally. Direct up you cannot pound on it that हम भगवान से मधुर संबंध बना सके। बट यस, आप भगवान कृष्ण के बारे में सुनना,
भगवान कृष्ण का जप करना ध्यान से, प्रयास करना एटलीस्ट, और भगवान कृष्ण की सेवा में रहने से मदन को भी आप कंट्रोल कर सकते हैं. मदन मोहन कृष्ण है, इसलिए इवन इफ़ यू कंसिडर कृष्णा एज योर मास्टर एंड इफ़ यू सर्व हिम, और ज़्यादा समय आप देंगे नहीं अपने आप को, तो भगवान की सेवा में जस्ट हमको कर्तव्य करने के लिए, हम पति का हो या फिर पति को पत्नी का हो, उनकी रक्षण करना, जो भी ड्यूटीज निभाना, पर द लस्ट थिंग हाउ टू कंट्रोल जस्ट बाय सर्विंग कृष्णा मोर, दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज द ओनली वे आउट. पर प्रभु जी ये बहुत डिफिकल्ट है ना, 15-20 years मैरिज बाद और attachment of the husband and then direct it to God. I think by the time I do this I'll die only. I've already crossed. नो, एक्चुअली आप देखेंगे तो अटैचमेंट वैसे ही ग्रेजुअली घटता है. आपको ऐसे लग रहा है, बट आप देखेंगे कि आपको ये नहीं प्रयास करना है कि मैं पति से अटैचमेंट कैसे नहीं रहूँ. दैट इज़ अ रॉन्ग वे टू डू. दिस इज़ लाइक अ ज्ञानी मार्ग है ये. फिर ज्ञानी मार्ग में ऐसा किया जाता है कि मैं आसक्त ना हूँ ये सब, बट आर वे इज़ टू इंक्रीज आवर अटैचमेंट टुवर्ड्स कृष्णा. सो स्थान काल को देखते हुए, एंड ऑब्वियसली वाइफ हैज़ सम ड्यूटीज, हस्बैंड हैज़ सम ड्यूटीज़. हम कई बार हस्बैंड का भी देखते हैं स्थिति, कई बार बहुत दिक्कत होते हैं, वाइफ डिवोटी नहीं है तो. लाइक सुपरमैन, रात को सुपरमैन होता है और सुबह वो ऑफिस में जाता है वैसे इसको रहना पड़ता है. तो डिवोटी के वेश में हम कई बार, एक तो ऐसा उदाहरण देखा था जिसमें एक तो डिवोटी इज दैट कि ग्रेजुअली होता है कोई भी चीज़, और हमारा यही पथ है कि भगवान के प्रति हमारी रुचि को बढ़ाना. जिसे भागवत से पढ़ के आप नष्ट प्रायश अभद्रेशु, अभी सभी जीवन के जो अभद्र हैं वो ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे सिर्फ भागवत पढ़ने से. अब भागवत में रुचि बढ़ाने से, अब भगवान कृष्ण की सेवा में जब व्यक्ति समय बिता देता है, ऑटोमेटिकली ही विल बी इंक्लाइन टू प्रैक्टिस सेलिबेसी. ऑटोमेटिक है वो, आपको अलग से, क्योंकि नहीं तो बहुत डिफिकल्ट है फॉर अ कर्मी, फॉर अ मटेरियलिस्टिक पर्सन टू कंट्रोल सेंसेस इज हाईली इम्पॉसिबल. So to control lust is very difficult, but is not impossible if you don't give time to yourself. You are always engaged in the service of the Lord. The moment you are not engaged in the service of the Lord, the lust will manifest any form and will disturb you. Okay, कहीं भी स्थान से आ सकते हैं. तो बहुत कॉन्शियसली एफर्ट होना चाहिए, व्यक्ति को बहुत कॉन्शियस रहना, अलर्ट रहना चाहिए कि भक्ति के नाम को लस्ट को पालन भी नहीं करना. ये भी बहुत टेंशन का काम है. एंड समटाइम वी सी इवन इन द ट्रांसेंडेंटल पाथ people fall down, or there are times when extramarital affair happens and this is very dangerous. ये इसलिए है क्योंकि अभी तक सिंसियरली वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं. क्योंकि जब करते वक्त या फिर कोई भी सेवा करते वक्त जो व्यक्ति का पर्पस ही बदल जाता है, तो व्यक्ति माया उसको कैच कर सकते हैं. तो दैट वेरी इंपॉर्टेंट. वी शुड बी सिंसियर इनफ टू प्लीज कृष्णा. वी शुड कॉन्स्टेंटली प्रे, वी शुड बी ऑलवेज अलर्ट. इससे वो ग्रेजुअली आता है, और ग्रेजुअली होगा क्योंकि हर किसी की कंडीशनिंग भी अलग है. आप बोलेंगे 2 साल में आ जाएगा तो वो संभव नहीं है. तो अब इतना टेंशन नहीं होना चाहिए कि मेरे तो, हम लोग तो लाइफ हमारा ख़त्म हो जाएगा, ये होगा नहीं, ऐसे नहीं है. वी हैव टू अंडरस्टैंड वी कृष्णा इज़ वेरी मर्सीफुल. आप भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं तो यस, पर यस नो वन थिंक लाइक इट मैजिक कि पूरा लस्ट फ्री हो जाएंगे. दैट इज़ नॉट, विल नेवर हैपन, बिकॉज हमारे शरीर में ही लस्ट है. जो चीज़ हम नहीं है उसमें ही लस्ट है, लस्ट फिटिंग कर दिया है. जो मन हम नहीं है उस मन में भी लस्ट फिट कर दिया है. बुद्धि हम नहीं है, फिर बुद्धि में भी लस्ट फिट कर दिया है. इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अस्याधिष्ठान उच्यते. कृष्ण से लस्ट रिसाइड्स इन ऑन सेंसेस, इन इंटेलिजेंस एंड ऑन द बॉडी, इन द बॉडी. तो हम आत्मा है, हम वो चीज़ नहीं होने के बावजूद में हमको परेशान करेगी. क्यों? क्योंकि आत्मा का ये स्वभाव बन चुका है कि शरीर समझना अपने आप को. आइडेंटिटी क्राइसिस की वजह से दिक्कत है. द मोमेंट वन ही विल हैव अ प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर अनुभूति, एक्सपीरियंस कि मैं शरीर नहीं हूँ. शास्त्र का आधार लेके बुद्धि का प्रयोग करना है हमको, कि शास्त्र में लिखा है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ. ये आकर्षण, ये छलावा है, इसको मुझ पर मनन नहीं करना है. डोंट मेक इट डेवलप दैट अटैचमेंट इन टू लस्ट. मन में है, थोड़ा उसको शास्त्र की बुद्धि से समझाना है. अगर नहीं हो रहा है तो टेक एन एसोसिएशन ऑफ अ सीनियर डिवोटी एंड टेक सम टिप्स फॉर हिम एंड बी प्रैक्टिकली एंगेज. समथिंग प्रैक्टिकली एंगेज शुड बी देयर. अगर प्रैक्टिकली एंगेज नहीं रहेंगे, आप अपना शरीर थकाएंगे नहीं भगवान की सेवा में,
बहुत डेंजरस सिचुएशन है फिर, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल लस्ट। लस्ट तभी आता है जब आपकी सेंसेस बहुत स्ट्रांग है, सेंसेस में बहुत शक्तियाँ हैं आपके पास। यानी ज़्यादा भोजन करने से व्यक्ति लस्टी बन सकता है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, या फिर तो सेंसेस अगर खाली बैठे हैं, एंगेजमेंट नहीं है उनको, सिर्फ भौतिक एंगेजमेंट है, तो लस्ट आता है। तो इसलिए सेंसेस में जब तक प्राण है ना, बहुत एनर्जी होती है ना, तब तक बहुत तीव्रता से लस्ट आता है उसमें। इसलिए सेंसेस को थकाना है किस में, हमको खाना तो कम नहीं कर सकते, तो सेंसेस को थकाना है किस में, भगवान की सेवा में, प्रैक्टिकल सर्विस। तो इसलिए सिर्फ शास्त्र पढ़ना भी पर्याप्त नहीं है। इसे सिर्फ शास्त्र पढ़ना, कई आप देखेंगे बहुत सारे ज्ञानी होने के बावजूद भी दे विल फॉल प्रे टू लस्ट। तो आपको शरीर को भी एंगेज करना पड़ेगा। एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चन? वर्षा ऋतु का एग्जाम्पल, शरद ऋतु। ओके, शलील से यथा शरद, भागवतम में इसका उदाहरण आता है। धुनोति श्यामलम कृष्ण सलील से यथा शरद, धौतात्मा पुरुष कृष्ण पादम मूलम न मुंछति, नहीं ये तो दूसरा श्लोक है। त्यक्तो सर्व परिक्लेश सलील से यथा शरद, कि व्यक्ति इतना शुद्ध बन जाता है भगवत भक्ति पर कि जितने भी उसके कंटामिनेशन है हार्ट में, वो ऐसे छिप जाते हैं जिस प्रकार शरद ऋतु में जो पानी के अंदर जो मिट्टी है वो छुप जाती है। जिस प्रकार वर्षा ऋतु में जल देखा जाएगा तो दूषित हो जाता है, सब जलों में आप देखेंगे, लेक्स में हो फिर नदियों में हो, वो दूषित होने लगता है क्योंकि सभी मिट्टी मिक्स हो जाती है, अब कीचड़ हो जाता है पूरा सब जगह। पर शरद ऋतु में क्या हो जाता है, जो पॉन्ड है, लेक्स है, उसमें क्या हो जाता है, जो मिट्टी जहाँ है वो नीचे आ जाती है और पानी जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। सो इसका मतलब ये भी लेना चाहिए कि हमको सतर्क रहना चाहिए कि अगर थोड़ा एजिटेशन कर देंगे हम पानी में तो फिर इससे पानी कंटामिनेट हो सकता है। उसी प्रकार अगर थोड़ा हम एजिटेट करेंगे, हम सोचेंगे अभी बहुत एकदम ज़बरदस्त अभी मैं भक्त बन गया, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो दिक्कत हो जाएगी, तो फिर से लस्ट आ ही सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ओके, नंबर 2 वर्स नंबर 64। रागद्वेष विमुक्तैस्तु विषयन् इंद्रियैश्चरन् आत्मवशयैर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट वर्स दिस इज, ये अभी की जो श्लोकों की श्रृंखला वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटस्ट कर सकते हैं आप इसको, ये भी श्लोक कंटस्ट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के कई वर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सो बट अ पर्सन फ्री फ्रॉम ऑल अटैचमेंट and aversion and able to control the senses through regulative principles of freedom can obtain the complete mercy of the Lord। अभी हमने श्लोकों की श्रृंखला सुनी, उसमें यह था कि अगर मन को संयमित रखे, इंद्रियों को संयमित रखे, तो उसका कितना बड़ा पतन हो जाएगा। पर उसके विपरीत जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति बन जाता है, अपने मन पर संयम रखता है, इंद्रियों पर भगवान की सेवा में लगा देता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान कृष्ण की प्रसाद अथवा कृपा मिलती है। प्रसादम अधिगच्छति। Purport by Srila Prabhupada, it is already explained that one may externally control the senses by some artificial process। आर्टिफिशियल प्रोसेस क्या है? उपवास करना। लोगों को लग सकता है बहुत बड़ा साधु है, ये तो खाता ही नहीं कुछ, बुखार आने के बाद तो वैसे ही गुलाब जामुन नहीं खाएगा, वो वैसे ही आइसक्रीम नहीं खाएगा, तो क्या साधु हो गया बहुत बड़ा, इंद्रिय कंट्रोल हो गया। नॉनवेज नहीं खाएगा तो क्या वो वेजिटेरियन हो गया? ऐसे नहीं। तो ये आर्टिफिशियल प्रोसेस से कोई भी व्यक्ति, इसमें आसान है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। आर्टिफिशियल प्रोसेस में एस्ट्रोनॉट्स भी जाते हैं उधर, वो कुछ ट्यूब खा लेते हैं या कुछ उनका कंटेंट अलग रहता है, वो भी कुछ ऐसे हमारे से राइस सब नहीं खाते, तो क्या वो योगी हो गए? नहीं। So, but unless the senses are engaged in the transcendental loving service of the Lord, there is every chance of a fall. Although the person in full Krishna consciousness may apparently to be on the sensual plane, because of his being Krishna consciousness, he has no attachment to sensual activities. मायावती को लगने लग सकता है कि हम बहुत बड़े विरक्त लोग हैं, और कृष्ण भावनामृत जो इस्कॉन वाले लोग हैं वो लोग इतने विरक्त नहीं हैं, वो लैपटॉप यूज़ करते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन को खाते हैं, पर उनको ये नहीं समझ में आता कि भगवान की सेवा के लिए हम ये स्वीकार करते हैं। प्रभुपाद जी
को कई बार निंदा होती थी कि सन्यासी को कभी प्लेन में नहीं बैठना चाहिए। प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं जैन साधु तो गाड़ी में भी नहीं बैठते हैं। आजकल तो बैठने लगे होंगे, आजकल तो बैठ जाते होंगे, आई डोंट नो, पर प्रभुपाद उस समय पे कह रहे थे कि गाड़ी में भी नहीं बैठते हैं। पर अगर मैं ऐसे सोचूं कि मैं पैदल यूएस जाऊंगा तो प्रचार कैसे होता था। तो नियम आग्रह नहीं होना चाहिए, ये उपदेश अमृत का सार है। उस उपदेश अमृतम में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक कोट करते हैं रूप गोस्वामी की, नियम आग्रह से भक्ति विनाश हो जाती है। आप नियमों को ही पकड़ने और सिद्धांत को भूल जाएंगे, कृष्ण को स्मरण करना अथवा कृष्ण का प्रचार करना, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए प्रभुपाद ने आचार्य जो होते हैं वो नियमों को बदल सकते हैं, हम नहीं। इसे प्रभुपाद के सिद्धांत को फॉलो करते हुए वी शुड बी वेरी कॉन्शियस इनफ टू यूज एवरीथिंग इन सर्विस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। और यही एकमात्र उपाय है हमको इंद्रियों पर संयम रखने के लिए, इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। Krishna conscious person is concerned only with the satisfaction of Krishna and nothing else. Therefore, he is transcendental to all attachment and detachment. If Krishna wants, the devotee can do anything which is ordinary undesirable. And if Krishna does not want, he shall not do that which he would have ordinarily done for his own satisfaction. चाहे वो धर्म क्यों ना हो, पर भगवान के भक्त जो है वो चीज को नहीं करना चाहेंगे जिससे कृष्ण को संतुष्टि न मिले। चाहे वो अधर्म क्यों ना हो, भगवान कृष्ण अगर उससे संतुष्ट है, अगर गुरु कहते हैं करना है तो हम कर लेंगे। तो ये कृष्ण भक्त का लक्षण है। इसलिए यहाँ पे दिया है कि तथाकथित लोगों को ये लग सकता है कि कृष्ण भावनात्मक व्यक्ति है, काम करता है, पैसे कमाता है, आईआईटी में कंपनी में काम करता है, या फिर कोई इंजीनियर है, फिर डॉक्टर है, ये तो हमारे जैसे ही पति नहीं। और जो मायावादी साधु है तो बहुत विरक्त है, ये ज़्यादा उन्नत, ये गलत परिभाषा है विरक्ति की। विरक्ति मतलब वो अनाश्रित कर्मफलम, जो कर्मफल पे आश्रित कमाता तो है पर उससे पैसा जो भगवान की सेवा में लगाता है। अपने पत्नी के साथ तो रहता है पर पत्नी को भगवान की सेवा में लगाए, पति को भगवान की सेवा में लगाए, बच्चे तो हैं पर बच्चे भगवान की सेवा में लगाए हैं, इसे कहते हैं युक्त वैराग्य। इफ कृष्ण वांट्स द डिवोटी कैन डू एनीथिंग फॉर हिम। So therefore to act or not to act is within his control because he acts only under the direction of Krishna. This consciousness is the causeless mercy of the Lord which the devotee can achieve in spite of his being attached to the sensual platform. तो कैसे एक्ट करना है, कैसे नहीं एक्ट करना है, किस चीज़ को स्वीकारना है, किस चीज़ को नहीं स्वीकारना है, ये हम भगवान कृष्ण के निर्देश अथवा उनके प्रतिनिधि जो गुरु हैं उनके गाइडेंस में हम करते हैं। ऐसे नहीं मैं कृष्ण के लिए पाप चोरी करके डोनेशन लेके आऊँगा, नहीं। अगर आपको गुरु ने अथॉरिटी दी है, जो कि गुरु ऐसे अथॉरिटी नहीं देंगे अभी के समय पे, कभी भी नहीं कहेंगे गवर्नमेंट के लॉस तोड़ के आप चीज़ें करें। तो अगर कृष्णा कुछ कहते हैं तो जैसे अर्जुन को कहा कि युद्ध करने, तभी करना था युद्ध, तभी अर्जुन तो दैट इज भक्ति। सो अथॉरिटी से हमको ऑथराइज करना चाहिए, देन ओनली वी कैन डू things which ordinarily cannot be do. So this consciousness is the causeless of mercy of the Lord. ये भगवान की अहेतु की कृपा है कि ऐसी विधि हमको देना जिससे हमको कुछ भी चीज छोड़ने की जरूरत नहीं है, सभी चीज भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। ये भगवान कृष्ण की अहेतु की कृपा है। सो बिना आसक्त हुए वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है सिर्फ इस प्रक्रिया को यानी युक्त वैराग्य को अपना के। So, in Acharya commentaries, the Vishwanath Chakravarti Thakur is saying that जैसे वो श्लोक जिसमें अर्जुन पूछते हैं स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का भाषा, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति कैसा रहता है, कैसे बोलता है, कैसे खाता है, तो यहाँ पे व्रजेत किम कि हाउ डज द स्थितप्रज्ञ गो। द लॉर्ड एक्सप्लेन्स दैट इट इज नॉट अ फॉल्ट to accept the object of the senses. कैसा रहता है मतलब स्थितप्रज्ञ रहता कैसा है, अगर वो इंद्रियों को संयम करेगा तो जिएगा कैसे, पर यहाँ पे कैसे जीता है, यहाँ पे दिया है। तो हमको विषय वस्तु अपनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे भोजन जिह्वा के लिए विषय वस्तु है, अपना में कोई दिक्कत नहीं है, पर भगवान कृष्ण को भोग लगा है तो इफ इट इज डन विद द कंट्रोल सेंसेस, और इतना ही खाना है जितना आवश्यकता है उतना। So if it is done with control senses, with absence of attachment of the objects in the mind, so sexual life is not bad. प्रभुपाद कहते हैं कि धर्मो विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, लस्ट है, सेक्स लाइफ है, इट्स नॉट बैड। कृष्ण सेज आई एम दैट सेक्स लाइफ,
व्हेन इट इज यूज्ड फॉर प्रोजेनी। एक गृहस्थ के लिए शारीरिक संबंध बनाना सिर्फ पुत्र उत्पन्न करने के लिए, वो भी भगवत परायण पुत्र उत्पन्न करने के लिए किया गया है, तो भगवान कहते हैं वो काम मैं हूं। Obviously, sexual life is allowed only for गृहस्थ, and on other 3 आश्रम it is banned completely. तो गृहस्थों के लिए अलाउड है, तो गृहस्थ को अलाउड तब है जब वैष्णव पुत्र उत्पन्न करने के लिए यूज किया जाए। That is all auspicious. So contacting the sense objects is not a fault, rather it is a good quality for one who does so with the control. अगर कोई कंट्रोल के साथ करता है तो कोई दिक्कत नहीं। युक्त आहार विहारस्य, युक्त चेष्टस्य कर्मस्य, युक्त स्वप्नावबोधस्य, योग भवति दुःखः। योगी वही होता है जो कम नहीं खाता है, ज्यादा नहीं खाता है, जो कम नहीं सोता है, ज्यादा नहीं सोता है। तो भगवान ये कभी अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि आप एकदम नागा बाबा बन जाए और कुछ मत खाए, कुछ नहीं से, कुछ मत पहने। भगवान ये अपेक्षा नहीं कर रहे। भगवान चाहते हैं युक्त वैराग्य। अगर नहीं चाहते थे भगवान ऐसा नहीं, तो अर्जुन भी वैसा करते थे ना, बिना कपड़े के युद्ध तो नहीं करते थे फिर। तो अर्जुन तो वही है, वो तो अपने कपड़े चेंज नहीं किए, वो तो ऐसे नहीं किए कि आप इसे उपवास कर दूंगा मैं, या फिर सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं वन में चला जाऊंगा, ऐसे तो नहीं किए। सो युक्त वैराग्य इज वेरी इंपॉर्टेंट, यूजिंग सेंसेस इन फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड। Sridhar Swami says that apprehending such doubts, Lord Krishna states in this verse, and the next where he clarifies that one who is free from both attachment and aversion, ना राग है, attachment है, ना द्वेष है कोई चीज के प्रति, although amidst sense objects attains the mercy of the Supreme Lord, ना उसको भोजन से अति आसक्त है वो, ना भोजन से वो विरक्त है। क्यों विरक्त नहीं? क्योंकि भगवान का प्रसाद है, उसको ग्रहण करना चाहिए। ना वो इतना आसक्त है कि नहीं 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 मुझे अच्छा प्रसाद, घी वाला प्रसाद नहीं मिलेगा तो मैं खाऊंगा ही नहीं, मुझे पनीर मिला तो ही खाऊंगा, ऐसे आसक्त भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को ही भगवान की कृपा मिलती है। ना राग है ना द्वेष है, इंद्र तृप्ति में ना उसको हेट है ना उसको द्वेष है। सो हियर अर्जुनस फोर्थ क्वेश्चन इज बीइंग आंसर्ड कंसर्निंग हाउ वन ऑफ स्टडी विजडम एक्सपीरियंस सेंस ऑब्जेक्ट्स। कैसे वो इंद्रिय विषय वस्तु से डील करता है, व्रजेत किम, इसके उत्तर कृष्ण ने इसमें दिया है। द आंसर गिवन इन दिस वर्स इज दैट वन एक्सपीरियंस सेंस ऑब्जेक्ट्स विथ वन सेंस अंडर कंट्रोल, पूरे कंट्रोल रखकर, रिमोट कंट्रोल जो अपने हाथ में रखकर। ऐसे नहीं कि रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में दे दिया और चलो जैसे अब नचाऊंगी मैं वैसे नचूंगा, नहीं। अ टाइम कम्स ही कैन प्रैक्टिस स्ट्रिक्ट ब्रह्मचार्य, when a time comes for progeny he can use that sexual life. A time comes he can fast, but when a time comes he can eat for the pleasure of Lord. So Madhavacharya was also saying that he is verified by the words, this is the word prasade means which devotes success achieved by the mercy of Supreme Lord. प्रसाद का यहाँ पे मतलब बताया है, मीनिंग बताया है कि कृपा भगवान की। तो प्रसाद सिर्फ भोजन ही नहीं होता है, भगवान के प्रति रुचि बढ़ना भी प्रसाद है, भगवान की सेवा भी प्रसाद है, भगवान की कथा भी प्रसाद है। Ramanujacharya ji is saying that previously in verse 61, Lord Krishna has declared that whoever meditates exclusively on him as the Lord of all, being the soul within all hearts, then by this all impurities are eradicated and the mind becomes clear, expunging all desires. Here he says that the senses becomes destitute and barren of all cravings and aversions when they are mastered by the mind in this manner, rejecting all desires of sense objects. With a mind firmly under control, one achieves lucidity of mind along with inner purity and blissfulness. जब व्यक्ति इस तरह युक्त वैराग्य को अपनाता है और इंद्रियों को भगवान की सेवा में रखता है और मन पूरा कंट्रोल में रखता है, लगाम के साथ पूरा अलर्ट, ऐसे व्यक्ति आनंद की प्राप्ति करता है, उसको इनर प्यूरिटी, अंतरंग शुद्धता को प्राप्त करता है और साथ में उसको अनंत आनंद की भी अनुभूति हो सकती है, ब्लिसफुलनेस जिसे कहते हैं। सो हियर वी कंप्लीट 64th वर्स। सो हियर वी विल स्टॉप हियर एंड व्हाट वी हैव इज दैट जो स्थितप्रज्ञ व्यक्ति नहीं है, जिसको मन में संयम नहीं है, इंद्रियों पे संयम नहीं है, ऐसे व्यक्ति का कैसे विनाश होता है सिर्फ ध्यान करने से विषय वस्तु पर। और उसके बाद कोई व्यक्ति कैसा रहेगा फिर बिना जिए, ध्यान करे बिना। तो ध्यान इस तरह नहीं कर रहा है, बल्कि भगवान की भोग्य वस्तु इस तरह वो देख रहा है कोई विषय वस्तु को, और जितनी आवश्यकता है उतनी ही अपने लिए प्रयोग करता है
चाहे वो भोजन हो, चाहे वो शारीरिक संबंध हो, चाहे वो कुछ सुनना हो या फिर देखना हो, तो अपने लिए जितने आवश्यकता है, जैसे कोई जॉब पे है तो जितना आवश्यकता है उतना बोलेंगे मीटिंग में, दैट्स इट। सो उसी प्रकार ऐसे करने से व्यक्ति को भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, ये इसमें इन श्लोकों में लिखा है। तो हियर वी विल स्टॉप। थैंक यू सो मच। एनी क्वेश्चंस? वो पूरा परंपरा दिया है ना, गुरु परंपरा, तो इसमें अर्जुन का नाम नहीं है, तो भगवान जब भी यहाँ पे बता रहे इंट्रोडक्शन में कि ओके, भगवान ने अर्जुन को क्यों चूज किया, भक्त है मित्र समझ गया मैं। ये परंपरा आपको समझना चाहिए, ये कोई ऐसा स्टैम्प नहीं है कि बाबा मध्वाचार्य के बाद एक ही शिष्य हुए, या फिर भक्ति सारण ठाकुर जी के बाद सिर्फ शीला प्रभुपाद जी हुए, ऐसे नहीं है। दिस इज अ लाइन ऑफ, दिस इज अ ब्रांच, क्योंकि एक गुरु के कई शिष्य होते तो उनका अलग ब्रांच बन जाता। तो हम अभी क्योंकि हम शीला प्रभुपाद जी के अनुयायी हैं, इसलिए वो एक ब्रांच को दर्शा रहे यहाँ पे। तो फिर इसलिए देर इज नो नीड टू राइट, बिकॉज अर्जुन हैज़ नॉट बिकम एन ऑफिशियल स्पिरिचुअल मास्टर फॉर एनीवन, इसलिए गुरु की पदवी उन्होंने कभी स्वीकार ही नहीं, तो इसलिए उनका नाम इसमें नहीं हो सकता। और आप देखेंगे कई ऐसे आचार्य होंगे जिनके कभी गुरु नहीं बने, किसी को शिष्य न ग्रहण किए, इसे सबका नाम उसमें नहीं मिलेगा। जैसे महाप्रभु के कई अनुयायी थे, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के भी कई शिष्य हैं, तो इन सभी का नाम इसमें आपको नहीं मिलेगा। पर जब उनके शिष्य जब उनके गुरु के ग्रंथ पढ़ेंगे तभी उसमें वो मेंशन करेंगे, प्रभुपाद के बदले में वो उनके गुरु का नाम देंगे, क्योंकि उनके गुरु भाई है इसलिए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट तो अब प्रहलाद महाराज देखें तो नारद मुनि के शिष्य हैं, ध्रुव महाराज भी नारद मुनि के शिष्य, उनका भी नाम होना चाहिए। तो परंपरा है, ऐसे नहीं कि परंपरा नहीं है, पर अभी यहाँ पे जो मेंशन किए हैं वो दैट्स जस्ट अ ब्रांच। ओके, वो एक ब्रांच और एक शाखाओं को, उप शाखाओं का ही वहाँ पे दर्शन दिया है। ओके।